اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم القرآن حجۃ لک او علیک صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الم نشرح، جسے عام طور پہ کہا جاتا ہے، نام اس کا سورۃ الانشراح ہے، وہ پڑھی ہے۔ ترجمہ اس کا سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور اے میرے حبیب پیغمبر آپ کے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے آپ کا بوجھ اتار نہیں دیا؟ کون سا بوجھ؟ الذی انقض ظہرک، اے پیغمبر وہ بوجھ جس نے آپ کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اب یہ 3 آیات ہیں جن کا ترجمہ کیا، پہلے انہی کا مفہوم سمجھ لیجئے۔ الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول دیا۔ یہ حضور کا سینہ کھلنے سے کیا مراد ہے؟ اس کا ایک مطلب اور مفہوم تو یہ ہے کہ ظاہری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ یا بعض روایات میں ہے 5 مرتبہ شق صدر ہوا تھا۔ شق کہتے ہیں پھاڑنا، صدر کہتے ہیں سینے کو، یعنی 4 سے 5 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا، قلب مبارک نکالا گیا تھا، اسے دھویا گیا تھا اللہ اور فرشتوں کی طرف سے، اور دوبارہ اس کو سی دیا گیا تھا۔ یہ شق صدر 4 مرتبہ ہوا ہے یا 5 مرتبہ ہوا ہے، احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ الم نشرح لک صدرک سے یہی شق صدر مراد ہے، ایک مطلب تو یہ ہے۔ اب یہ سوال تو صحابہ کرتے کہ یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہوئی کہ آپ کے سینے کو چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا، آپریشن کر کے دوبارہ لگا دیا گیا، یا رسول اللہ کیا بھلا یہ ممکن بھی ہے؟ صحابہ یہ پوچھتے تو بنتا تھا، میرا اور آپ کا پوچھنا تو یہ بنتا بھی نہیں۔ ہمارے لاہور میں تو روزانہ لاکھوں کی تعداد میں بائی پاس کے آپریشن ہو رہے ہیں، اور آج یہ اللہ کی مخلوق جو انسان ہے، تھوڑا سا علم رکھتا ہے، یہ انسان کا سینہ چیرتا بھی ہے، دل کو نکالتا بھی ہے، اس کو دھوتا بھی ہے، دوبارہ لگا کے سی بھی دیتا ہے، انسان کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کے پاس یہ طاقت موجود ہے، تو جو انسان کا خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، اور قلب اطہر بھی کس کا نکالا جا رہا ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، جو امام الانبیاء ہے، خیر الانبیاء ہے، حاشر الانبیاء ہے، ظاہر الانبیاء ہے، باطن الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، اس کے سینہ اطہر کو نکالنا اور دوبارہ رکھنا یہ عالم امکان میں آج بھی ممکن ہے، اس وقت بھی ممکن تھا جی۔ یا تو یہی مراد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قلب اطہر نکالا گیا، اس کو سیا گیا اور دوبارہ لگائیے، شق صدر مراد ہے۔ یا پھر الم نشرح لک صدرک سے مراد یہ ہے کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا، کیا مطلب؟ آپ کے دل کو ہم نے نور عطا فرما دیا۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ یہ الم نشرح لک صدرک کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر مومن بندے کے دل کو نور عطا فرما دیتے ہیں جو اللہ کا مومن ہو۔ آگے بھی صحابہ تھے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جب اللہ نور کسی کو عطا فرماتے ہیں تو پتہ کیسے چلتا ہے، نشانی کیا ہے کہ اس کے دل میں نور آ چکا ہے؟ حضور نے فرمایا 3 نشانیاں ہیں، اگر وہ 3 نشانیاں کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اس کا شوق آخرت کی طرف اللہ منتقل فرما دے گا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ دنیا کی اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے گا۔ تو جس بندے کو یہ 3 علامتیں میسر آ جائیں، وہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت نے اس کو انشراح صدر عطا کر دیا۔ الم نشرح لک صدرک، اے پیغمبر ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا؟
वज़अना अन्का विज़रक, और ए पैगंबर देखिए तो सही कि हमने आपके बोझ को उतार दिया। अब ये बोझ कौन सा है, इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि या तो ये बोझ था इंसानियत के इस्लाम लाने का। हुजूर ये चाहते थे कि सारी इंसानियत मुसलमान हो जाए, कोई बंदा काफिर ना रहे, कोई जहन्नमी ना रहे। अल्लाह ने वो बोझ कैसे उतारा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के पैगाम को आम ताम फरमा दिया। पहले 1 आया, फिर 2 आए, फिर 3 आए, फिर 4 आए, फिर 313 आए हैं जी, फिर 10,000 आए, और फिर हज्जतुल विदा में 1,24,000 आ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बोझ हुजूर का उतार दिया। हुजूर का पैगाम अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। ये बोझ से ये मुराद है जो हुजूर के कल्बे अथर पे था, या फिर बोझ से मुराद ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पे ये बोझ था कि मेरी उम्मत का कोई फर्द आखिरत में जहन्नम का ईंधन न बन जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर को मकाम शफाअत अता फरमा दिया, और ये वादा फरमा लिया कि महबूब आपका रब आपसे ये वादा करता है कि माशर का मैदान होगा, आपके सर पे ताज शफाअत होगा, आप खड़े होकर सिफारिश फरमाते जाएंगे, मैं माफ करता जाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर का ये बोझ इस तरह उतार दिया। दोनों मतलब हैं, या तो उम्मत इजाबत मुराद है जो मुसलमान हो चुकी है, जो क्या हो चुकी है जी, उसे कहते हैं उम्मत इजाबत, जिसने हुजूर की बात मान ली। या तो वो मुराद है कि उसका बोझ हुजूर के दिल पे था। क्या मतलब कि आखिरत में मेरी उम्मत इजाबत का क्या बनेगा, जहन्नम में तो नहीं जाएगी। अल्लाह ने मकाम शफाअत अता फरमा के वो बोझ दूर फरमा दिया। या उम्मत दावत मुराद है। याद रखिए, सारी इंसानियत चाहे वो मुसलमान है या काफिर, वो हुजूर की उम्मत दावत है। वो क्या है जी, हुजूर की उम्मत है, उसको दावत देना हर मुसलमान के जिम्मे है। या वो उम्मत दावत मुराद है। अल्लाह ने उम्मत दावत का बोझ हुजूर के दिल से इस तरह उतारा कि हुजूर को ऐसे सहाबा अता कर दिए जिन्होंने हुजूर का पैगाम पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुजूर के दिल का बोझ उतारा। अब सुनिए, ये आयत आपको समझ आ चुकी होंगी। अलम नशरह लका सदरक, महबूब हमने आपके सीने का बोझ हल्का नहीं कर दिया। व वज़अना अन्का विज़रक, और महबूब हमने आपके बोझ को उतार दिया। अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक, जिस बोझ ने आपकी कमर को तोड़ के रखा हुआ था। आगे सुनिए, व रफ़अना लका ज़िक्रक, और महबूब हमने आपके जिक्र को आपके लिए बुलंद नहीं फरमा दिया। अब अल्लाह जिसके बारे में फरमाए कि मैंने आपका जिक्र बुलंद कर दिया, उसके जिक्र की बुलंदी का आलम क्या होगा। हुजूर का जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया है, इसके भी दो मतलब हैं। पहला मतलब तो यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात बनाई। किसने बनाई कायनात जी, बोलिए। कायनात अल्लाह ने बनाई। खालिक अल्लाह है, मालिक अल्लाह है, राज़िक अल्लाह है, माबूदो मसजूदो मकसूद भी अल्लाह है। लेकिन अल्लाह ने महज अपनी इबादत को काबिल कबूल नहीं किया। अगर कोई शख्स सारी जिंदगी सिर्फ अल्लाह की इबादत करता रहे, जनाब रसूलुल्लाह को नबी ना माने, उसकी इबादत उसके मुंह पे मार दी जाएगी। अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ साथ हुजूर पे ईमान लाने को लाजमी करार दे दिया। फरमाया मेरी इबादत वही मकबूल है, मेरी इबादत वही मुझे मंजूर है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी के रास्ते से होके आई हो। जब इबादत हुजूर की गुलामी के रास्ते से हो के आएगी तो वही अल्लाह की बारगाह में कबूल मंजूर है। यह मतलब है कि महबूब मैंने आपके जिक्र को ऊंचा कर दिया। दूसरा मतलब उलमा मुफस्सिरीन इसका यह फरमाते हैं कि इसका मतलब दूसरा यह है कि अल्लाह ने हुजूर के जिक्र को इस तरह ऊंचा फरमाया कि जहां पर अल्लाह ने अपना नाम रखा, वहीं पे अल्लाह ने अपने हबीब का भी नाम रखा। आप आजान से लें, आजान है, इकामत है, नमाज है, हज है, उम्रा है, हत्ता के मुसलमान होने के लिए लाजमी जो कलमा है, या मरने के बाद जो जनाजा है, जनाजे के बाद कब्र में जाने के बाद जो कब्र के सवालात व जवाबात हैं, इंसान के पैदा होने से लेकर इंसान के मरने तक जहां जहां पे अल्लाह का नाम आता है, वहीं वहीं पे जनाब रसूलुल्लाह का नाम आता है। किसी ने कहा था सलातुल्लाह कलामुल्लाह, जहां देखा तो ये देखा, लिखा अल्लाह जहां देखा, मोहम्मद भी लिखा देखा सल्लल्लाहु अलैहि व रफ़अना लका ज़िक्रक। महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को इतना बुलंद कर दिया। आगे सुनिए, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। महबूब बेशक, फ़इन्न बेशक, पक्की बात है, मअल उसरि युस्रा, महबूब तंगी के साथ आसानी है, तंगी के साथ आसानी है।
फिर दोबारा फरमाया इन्ना मअल उसरी युसरा, तंगी के साथ। आम तौर पे जब आप ये पढ़ते हैं आयत या मैसेज में आती है या इसका तर्जमा आपको सुनाया जाता है, आम जहनों में ये है कि आपने ये सुना होगा जी तंगी के बाद आसानी है। सुना? कोई बीमार होता है, आप इयादत के लिए जाते हैं तो आप उसे क्या कहते हैं? तुम परेशान ना हो, तंगी के बाद क्या है? आसानी है। तंगी के बाद क्या है? आसानी है। किसी को कोई दुख मिल जाए, आप हौसला क्या कह के देते हैं कि हजरत घबराएं नहीं, तंगी के बाद क्या है? अल्लाह ने बात तो फरमाया नहीं, बाद फरमाते तो यूं कहते कि फ़इन्न बअदल उसरि युसरा, महबूब तंगी के बाद आसानी है। अल्लाह ने यह फरमाया ही नहीं, अल्लाह ने फरमाया महबूब फ़इन्न मअल उसरि युसरा, तंगी के साथ साथ आसानी है। तंगी भी है, लेकिन कभी गौर किया है कि उस तंगी के साथ आसानियां कितनी हैं? तंगी ये है कि मैं बीमार हो गया, आसानियां कितनी है कि पैसा भी मौजूद है, अस्पताल भी मौजूद है, इलाज भी हो रहा है, इलाज लग भी रहा है। ये कितनी बड़ी आसानी है। हर तंगी में गौर फरमाइए हजरत, हमें जितनी तंगियां मिलती हैं, जितनी परेशानियां मिलती हैं, हर तंगी और परेशानी के साथ साथ हजारों आसानियां भी चल रही होती हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन इंसान चूंकि ज़ईफ़ है, कमज़ोर है, जाहिल है, उसकी नज़र सारी की सारी तंगी पे रहती है। वो तंगी को देख देख के हाय फाय वाह करता है, और उसके साथ साथ जो आसानियों का एक लश्कर चल रहा है, उसकी नज़र उन आसानियों पे जाती ही। हालांकि अल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि तू कभी गौर कर तो पक्की बात है, तंगी के साथ साथ क्या है जी? आसानी है। हर तंगी के साथ आसानी है। और यहां पे ये नुक्ता समझ लीजिए, तवज्जो भरपूर चाहता हूं। यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्ना मअल उसरी युसरा, अल उसर मानी तंगी, युसर मानी आसानी। उसर पर अल्लाह ने अलिफ लाम लगाया। जिस लफ्ज पे अरबी में अलिफ लाम लग जाए वो मारफा बन जाता है। मारफा कहते हैं मखसूस चीज को, खास चीज को, और जो चीज मारफा ना हो, नकरा हो, वो आम होती है। जब मैं कहूं कि कोई आदमी बुला के ले आओ तो आपकी मर्जी है लाहौर का जो आदमी भी बुला के ले आए, और जब मैं कहूं कि भाई साजिद को बुला के ले आओ तो आप पाबंद होंगे किसको लाने के? क्योंकि ये मारफा है, मारफा खास है। और नकरा क्या है? अल्लाह ने तंगी को मारफा रखा और युसरा आसानी को नकरा रखा। अल्लाह बताना यह चाहते हैं कि तुझ पे तंगी तो एक आधी आती है, लेकिन मैं आसानियों के दरिया बहा देता हूं। तो बीमार होता है, अस्पताल भी मुहैया कर देता हूं, पैसा भी मुहैया कर देता हूं, इलाज भी मुहैया कर देता हूं। अगर तेरे सर में दर्द है, तेरी आंखें भी सलामत कर देता हूं, तेरे नाक कान भी दुरुस्त होते हैं, तेरी जबान भी दुरुस्त होती है, तेरे हाथ पांव भी सही सलामत होते हैं। तो मेरी आसानियों को भी देखा कर, सिर्फ तंगी को। वो किसी अल्लाह वाले को बीमार हुए बुजुर्ग, तो उनके पास इयादत के लिए लोग, उन्होंने कहा हजरत क्या हाल है? उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा बेहतरीन हाल है, बहुत बेहतरीन गुजर रही है। मैदे की उनको तकलीफ थी। कहा जी वो कैसे? हमने सुना आप बीमार हैं। कहा जी नहीं, आंखें भी सलामत हैं, जबान भी सलामत है, कानों से सुनता भी हूँ, नाक से सूंघता भी हूँ, मुंह से खाता भी हूँ, जबान से बोलता भी हूँ, हाथों से पकड़ता भी हूँ, पाँव से चलता भी। बस थोड़ी सी मैदे की तकलीफ है, अल्लाह वो भी दूर फरमा देगा। ये है इन्ना मअल उसरी युसरा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक एक तंगी के साथ हजारों आसानियां जुड़ी हुई होती हैं। वो किसी शायर ने कहा था ना कि लुत्फ़े सजन दम बदम कहरे सजन गाहगा। अल्लाह का लुत्फ दम बदम रहता है, हमेशा रहता है, और कहरे सजन गाहगा, और अल्लाह का जो कहर है, गजब है, वो कभी कभी आता है। तो लुत्फ जो महसूस करता है ना, वो कहर में भी राजी रहता है। तो उसे कहना चाहिए ईवी सजन वाह वाह, ऊवी सजन वाह वाह। वो महमूद गजनवी का एक गुलाम था ना, अयास। हाँ जी, तो दीगर गुलाम उससे बड़ा हसद करते हैं कि महमूद गजनवी अयास को बड़ी वक़्त देता है, हर वक्त अयाज 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 करता है गुलाम गुलाम, ज़्यादा शक्ल सूरत का मामूली बेतुका सा बंदा है, देखने के लायक नहीं। और महमूद गजनवी की इसके बगैर गुजरती नहीं, निभती नहीं। उन्होंने कहा हजरत हम खानदानी वजीर लोग हैं, मुशीर लोग हैं, हमारी तरफ आपकी तवज्जो और ध्यान कोई नहीं, अयाज 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 करते हैं हर वक्त। महमूद गजनवी ने एक मरतबा उन वजीरों का और अयाज का इम्तिहान लेने का इरादा किया। बहुत कड़वा किस्म का कोई फल मंगाया, उसको बनाया और उसके तराशे हर वजीर को दे दिया और कहा खाओ। तो जो वजीर कड़वे फल को मुंह लगाता, थू थू करके फेंक देता बाहर। ओ नहीं, कड़वा है कड़वा है कड़वा है कड़वा। सब ने फेंक दिया। अयाज आया, महमूद गजनवी ने फल अयाज के सामने रखा, अयाज खाने लग गया।
महमूद गज़वी ने कहा अयाज कड़वा नहीं है? उसने कहा जी बिल्कुल है। कहा फिर फेंका क्यों नहीं? कहा हजरत कब से लेकर आज तक हमेशा आपकी तरफ से अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं, खुश होके खाई हैं, अगर कभी आपने कुछ कड़वा दे दिया तो थूकते हुए शर्म आती है। यह है इन्ना मअल उसरी युसरा। तंगी अल्लाह की तरफ से एक आधी आती है, लेकिन आसानियां कितनी होती है? बेशुमार होती हैं। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कभी कोई तंगी आ जाए तो तंगी की बजाय निगाह आसानियों पे रखी जाए, ताकि दिल में नाशुक्री की बजाय शुक्र के जज्बात पैदा हो जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हकीकत को 2 बार फरमाया, फ़इन्ना मअल उसरी युसरा। लोगों, तंगी के साथ साथ क्या है जी? बोलिए, आसानी है। इन्ना मअल उसरी युसरा, बेशक तंगी के साथ साथ आसानी है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया? सुनने की बात है। फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़नसब, बस जब फारिग हो जाओ, फ़नसब, तो अपने आप को थका दो। ये बड़ी अजीब बात है। फारिग होकर बंदा क्या करता है? आराम करता है या थकाता है खुद को? जी, आराम करता है। कुरान में अल्लाह क्या फरमा रहा है? फ़इज़ा फ़रग़्ता, ए पैगंबर जब आप फारिग हो जाएं, फ़इज़ा फ़रग़्ता, ए पैगंबर जब आप क्या हो जाएं? फारिग हो जाएं, फ़नसब, तो अपने आप को थका दीजिए। अल्लाह किस में थकाना है? अभी तो काम करके आया हूं, अभी तो फारिग हुआ हूं, अब तो सोने का वक्त है। फरमाया व इला रब्बिका फ़रग़ब, अपने रब को राजी करने में खुद को थका दीजिए। अपने रब को राजी करने में खुद को थका दीजिए। ये इंसानियत से अल्लाह को मतलूब है। कभी तो कोई रात ऐसी आए मेरी और आपकी कि काम करते करते थकते तो जिंदगी गुजर गई, हजरत बाल सफेद हो गए कि थक गए। क्यों? काम करते करते थक गए। कभी तो ऐसा लम्हा भी आए कि कयाम में तहज्जुद में खड़े होते होते थक जाएं, रुकू इतना लंबा करें कि रुकू करते करते थक जाएं, सजदे इतना ज़्यादा करें कि सजदा करते करते थक जाएं। कभी तो ऐसा वक्त अल्लाह मुहैया करे कि मुसल्ले पे थकना नसीब हो। जो मुसल्ले पे थकने वाला बन जाता है, अल्लाह उसको दिन भर की थकन से महफूज फरमा देता है। हाँ जी। फ़इज़ा फ़रग़्ता, ए महबूब जब आप फारिग हो जाएं, फ़नसब, तो अपने आप को थकाया कीजिए। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने रब की तरफ रजू और ध्यान भी किया कीजिए। तो हज़रात गिरामी, ये सूरत अल इंशिराह है, ये जमाली सूरतों में से है जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत और जमाल और इनायात छलक रही हैं। अल्लाह हमें बार बार ये बता रहा है कि लोगों, जो एक आधी तंगी देता हूँ तो 7 हज़ारों आसानियाँ भी अता कर देता हूँ। आसानियों पे नज़र रखा करो, तंगी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। इस्लाही बयानात, फ़िक़ही मालूमात और मुस्तनद दीनी तालीमात के लिए मौलाना अहमद मदनी अब्बासी चैनल सब्सक्राइब करें।